Hello everyone, welcome to the Edumental. Today we are going to study Economics, Unit 1 Introduction. In this video, we are going to study about introduction and scarcity. So let's start with the video. So, our first topic is resources. What do you mean by resources? Anything which meet our wants are resources means जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करे, वो हर चीज़ रिसोर्स होती है. Resource has two features. First, resources are confined in nature, that is, they are limited in nature. Second, they have alternative use, means one resource has many uses. For example, in case of milk, from milk we can make curd, ghee, cheese, etc. So, now resources are anything which complete our want. Now let's move to the next topic, commodities. Commodities is the combination of goods and services. Goods are the tangible in nature, which means they are seen, touched and measured. Means आप उसे touch कर सकते हो, देख सकते हो goods like anything, your mobile phone, your laptop, your pen, pencil, book, anything are called as goods. Now come to services. They are intangible in nature, that is, they cannot be touched, seen or measured. For example, banking services, advertisement, insurance, teaching, transportation. Banking, the services provided by bank are called banking services. Transportation includes Ola, Uber, etc. Insurance like LIC. Our next topic is scarcity. This is a very important topic as the main chapter starts from here. Scarcity means less availability of resources as relation to its demand, means demand of resources exceeds its supply. इसका मतलब है कि हमारे पास मार्केट में डिमांड है रिसोर्सेज की, उस पर्टिकुलर गुड सर्विस की डिमांड है, बट उसकी सप्लाई नहीं हो रही है. मीन्स आपके पास पीछे से वो चीज़ नहीं आ रही है. So that is what it is called as scarcity. Now there are two main terms. First one, economy, and economy. Economy means system which provide living to the people or people work to earn together their livelihood, which means people work to earn their livelihood means कि जो इंसान काम कर रहा है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कंटिन्यू रखने के लिए, that is what called economy. Second term, economics. It is a social science which concerned with the individuals and social choice at a presence of scarcity means that subject which is concerned with individuals and a choice which is in the presence of scarcity. Scarcity मतलब कि एक तरह से डिमांड जहाँ पे ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है, उसकी प्रेजेंस में आपको चॉइस करनी है. That is what economics is all about. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ चॉइस प्रॉब्लम मीन्स जो एक पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाट चॉइस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ प्रेजेंट scarcity. Now there are few questions comes in your mind. First one, do all economies face choice problem? So let's say that question means कि सारी इकोनॉमीज क्या चॉइस प्रॉब्लम फेस करती है. इकोनॉमीज लाइक इंडियन इकोनॉमी, USA की इकोनॉमी, UK इकोनॉमी, any other country's economy. So, do all economies face choice problem? Yes, all economy face choice problem as resources are scarce everywhere. Not only in India, but everywhere resources are scarce. Now, next question: do scarcity and choice go together? Means scarcity and choice go together. So, let's answer this. Yes, scarcity and choice go together, as if things are available in plenty, there would not be any choice problem. If things are scarce, then the problem of choice will arise. For example, suppose a person asks the shopkeeper to show shirts, and if the shopkeeper have show him plenty of shirts, then he would not face any choice problem. On the other hand, if he shows only two shirts, then a person will face the choice problem.
सो द स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। इन सिंपली, आप किसी की शॉप पे गए, आपने वहाँ पे उससे कोई चीज़ मांगी, उसने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, जो आप लेना चाहते हो वो ले लोगे। लेकिन अगर सिर्फ उसके पास उस गुड की दो ही टाइप्स हैं, सो इन दैट वे यू गेट कंफ्यूज कि अब कौन सा लेना चाहिए। दैट इज व्हाट स्कार्सिटी एंड चॉइस। सो scarcity and choice go together. Now, what is economics is all about? Next question. So, economic is all about making choices in the presence of scarcity. Let's say, so economics means simply it means making choices in the presence of scarcity. Next question, what is economizing of resources? That is very important term, economizing of resources. So it means effective and efficient utilization of resources so that there would not be any wastage of it. Now effective means use of good service resource in a way that कि वो एक अच्छे तरीके से यूज हो जाए। एंड एफिशिएंट मीन्स उस चीज को इस तरीके से यूज करना कि आपकी उसके ऊपर कॉस्ट कम आए। सो स्कार्सिटी इज ऑल अबाउट दैट रिसोर्सेस कम है, डिमांड ज्यादा है उस चीज की मार्केट में, तो आपको किसी तरीके से सब अरेंज करना है, कैसे आप चॉइस करोगे, इट्स ऑल अबाउट दिस। Hello everyone, welcome to the Edumental. Now, in today's, as we all know, in previous video we studied about introduction and scarcity. In today's video, we are going to cover these four topics: microeconomics, macroeconomics, positive economics, and normative economics. Now, let's start with the branches of economics. There are two branches of economics: microeconomics and macroeconomics. Micro and macro are the words taken from Greek, where micro means small and macro means large. For example, a firm is a single producing unit, and an industry is a group of firms. That means group of producing units. Now, micro is one of the branch of economics which deals with study of an individual unit of an economy. For example, demand of a consumer means single consumer की demand, supply of a producer, pocket expense of a child, and many more. Now, macroeconomics means which deals with the study of economy as a whole. मतलब macroeconomics के अंदर जो economy है उसे पूरा एक माना जाता है. For example, like aggregate demand. Aggregate demand means demand of every consumer, हर individual की add करके demand जो होती है वो. Aggregate supply and pocket expense of children. Now let's clear the concept of microeconomics and macroeconomics by differentiating them. Now, first of all, meaning means branch of economics which studies behavior of an individual unit of an economy. Means it only studies with the individual unit. इकोनॉमी में जो सिंगल यूनिट है सिर्फ उसी की स्टडी करते हैं, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स, it is a branch of economy which studies behavior of aggregate units. Means they take economy as a whole, कि जितने इकोनॉमी में प्रेजेंट हैं चीजें वो एक ही यूनिट है, वो ये कंसीडर करते हैं. नाउ एम एंड ऑब्जेक्टिव. इट्स एम is to determine price of commodity or price of FOPs. Means इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है कि एक कॉमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करना और FOPs. We already studied about FOPs in our previous classes. Like FOPs are the factor of production. Now FOPs, like there are 4 FOPs: land, labor, capital and entrepreneur. Land पे हमें फैक्टर पेमेंट मिलती है रेंट की, लेबर पे हम वेजेस पे करते हैं, कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलता है. कैपिटल हियर मीन्स इनकम जो हम एक बिजनेस के अंदर लगाते हैं उसे स्टार्ट करने के लिए. एंड एंटरप्रेन्योर इज अ टाइप ऑफ अ बिजनेस, तो उसमें हमें प्रॉफिट्स गेन होते हैं. नाउ द एम ऑफ macroeconomics is to determine income and employment level of a country. Means जो माइक्रोइकोनॉमिक्स का एम होता है वो पूरी कंट्री के इनकम और उसकी एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिससे कि आगे काम हो सके. लाइक इसमें एग्जाम्पल आते हैं जैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना,
जो गवर्नमेंट पेमेंट्स करती है, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिवेन्यूज, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिमांड, सप्लाई की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दिस इज ऑल द टॉपिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, मतलब सिंगल डिमांड एंड सिंगल सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। नाउ देयर आर सम assumptions which is taken while studying economics. So in case of microeconomics, we assume all macro variables, means all macro that are macroeconomic variables to be constant, and in case of macroeconomics it is considered that all the micro variables to be constant. The microeconomics also called as price theory, and macroeconomics also known as income and employment theory. Now example of microeconomics is स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज की हम स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। और अगर हम किसी की डिमांड, मतलब होल कंट्री की या एक पूरे घर की डिमांड लेते हैं तो डेट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, एंड इट इज an example of macroeconomics. So if we just conclude that from all this discussion, we concluded that microeconomics is deal with a single unit of an economy and macroeconomics deals with the economy as a whole. So हम जितने भी चैप्टर माइक्रोइकोनॉमिक्स जो अलग से सब्जेक्ट है या इकोनॉमिक्स के अंदर ही एक प्रॉपर बुक है, उसमें जितने भी हम पढ़ेंगे दैट ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। और जो चैप्टर्स मैक्रोइकोनॉमिक्स के हैं वो उसके एग्जांपल्स भी कंसिडर। Now let's start with positive economics and normative economics. Positive economics means what is or how the economic problem is actually solved, मतलब कि क्या ऐसा करा जाए जिससे economic problem solve हो सके। Normative economics means what ought to be or how the economic problem should be solved, मतलब कि economic problem कैसे solve होनी चाहिए। Now verification, it can be verified by the actual data. एक्चुअल डाटा मतलब हो गया जैसे हमारे पास इंडिया में सेंसेक्स है या वर्ल्ड में जो डाटा कलेक्ट होता है कि कहाँ पे क्या, कितनी परसेंटेज में क्या चीज़ है, कितनी पॉपुलेशन है, ये सब का एक डाटा है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ एक ओपिनियन है, एडवाइस है, सजेशन है, इट्स दैट, तो वो चीज़ वेरीफाई नहीं हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वेरीफाई हो सकता है। सजेशन, सिंस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स, सो ये कोई डज नॉट गिव एनी सजेशन, कोई सजेशन नहीं देता है। ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेशन ऑन द ओपिनियन, बिकॉज ये फैक्ट्स पे बेस ही नहीं है। यहाँ पे आप ओपिनियन, एडवाइस ये सब देते हो कि सजेस्ट कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तो हमारे पे डाटा है, हम उससे देख रहे हैं कि ऐसा है कि नहीं है। सो पर्पस ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इट मेक्स रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और अफेक्ट, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी इकोनॉमी का एक रियल डिस्क्रिप्शन देता है कि हाँ ऐसा ही है, इससे ना कुछ ऊपर है ना नीचे, जो दिख रहा है वही है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है उसके अंदर डिटरमाइन द आइडल्स, मतलब डिटरमाइन करना कि क्या ओपिनियंस होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, ये सब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। वैल्यू जजमेंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट पास एनी वैल्यू जजमेंट, इसमें क्योंकि कुछ है ही नहीं जजमेंट देने को, तो वो क्या जजमेंट देगा, वो तो आपको सीधा सीधा बता रहे कि ये डाटा है, इससे मैच कर लो, अगर हो रहा है तो तुम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को माना जाएगा। लेकिन सिंस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम डाटा जो है उसके सजेशन दे रहे हैं, कोई डाटा नहीं है, तो वो वैल्यू जजमेंट देता है। अपने ओपिनियन शेयर करे तो वो एक वैल्यू जजमेंट देता है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोइंग इन इंडिया, इसका हम डाटा चेक कर सकते हैं। जैसे डेली कुछ ना कुछ हर मंथली क्वार्टरली डाटा आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, जैसे अभी कोविड सिचुएशन में भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। सो ये हमारे पास डाटा है, हम चेक कर सकते हैं एक्चुअल डाटा से। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, वी ऑल नो, हमें कैसे पता है, क्योंकि एक डाटा है जो ये शो करता है कि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। सो ऑन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ग्रोइंग एम्प्लॉयमेंट शुड बी कंट्रोल,
मतलब कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसे कंट्रोल करना चाहिए, एक सजेशन दे रहे हैं, एक ओपिनियन है किसी का कि ऐसे स्टॉप करनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट को। सो सिंपली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो है जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं किसी डाटा से, जिसे हम चेक कर सकते हैं कि हाँ ये है कि नहीं है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताते हैं कि इसे हमें क्या करना चाहिए जो ये चीज़ हो जाए, लाइक कि क्या हम सॉल्यूशन करें जिससे हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए सिंपली। सो मेजरली हम इसमें ऐसे ही डिफरेंस करते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो है जो हम एक्चुअली में देख सकते हैं, जिसका डाटा प्रेजेंट है, फैक्ट्स हैं कि हम मैच कर लें। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं कि कोई फैक्ट्स तो है नहीं, तो उस बेसिस के ऊपर। Now let's discuss some examples of microeconomics and macroeconomics. Microeconomics में इंडिविजुअल मार्केट, जैसे दिल्ली में सरोजनी नगर है, जनपद है, ये एक मार्केट है। हम उस मार्केट में देख रहे हैं कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कैसे कंज्यूमर का बिहेवियर है, ये सब हम उस पर्टिकुलर मार्केट में चेक कर रहे हैं कि, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड, मतलब कि एक गुड के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। सो प्राइस कैसे चेंज हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, कि एक कंज्यूमर उसे ले रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। इंडिविजुअल लेबर मार्केट, मतलब लेबर मार्केट जो है उसमें हम एक पर्टिकुलर यूनिट, जो एक पर्टिकुलर लेबर मार्केट है उसी के बारे में देख रहे हैं कि कितनी अंदर लेबर आ रही है, कितनी अपॉइंट हो रही है, कितने के वेजेस कैसे जा रहे हैं, तो हम सिर्फ उसी के सिलेक्टेड ग्रुप पे ही देख रहे हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, लाइक कोई भी मार्केट में जा रहा है कि वो वही फूड खा रहा है उस रेस्टोरेंट के अंदर, तो एक वो इंसान क्या वो उस फूड क्या देखा जाएगा कि उस फूड को ही क्यों खा रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये सब होता है। सप्लाई ऑफ गुड की उस मार्केट में, लाइक मार्केट में सप्लाई कैसे हो रही है, या उस गुड की सप्लाई देख रहे हैं। जैसे सिर्फ हम लाइक से मोबाइल फोन्स, तो रेडमी के मोबाइल फोन की हम सप्लाई देख रहे हैं सिर्फ, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही। लेकिन हम सारे सेल फोन्स की देखेंगे तो वो मैक्रो में आ जाएगी, लाइक होल इकोनॉमी। सो होल इकोनॉमी में पूरी इंडिया है, पूरी इकोनॉमी है, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसकी देख रहे हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन, मतलब प्राइस कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो पूरी इकोनॉमी में प्राइस कैसे इंक्रीज हो रहा है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। एग्रीगेट डिमांड, मतलब सब सारे कंज्यूमर्स की डिमांड का सम, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ इकोनॉमी, मतलब पूरी कंट्री या पूरी इकोनॉमी होल वर्ल्ड की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कैसे कैलकुलेट हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। Now let's discuss the examples of positive economics and normative economics. Like in positive economics, does a currency devaluation fuel inflation? मतलब करेंसी में डिवेल्यूशन हुआ तो क्या उससे फ्यूल में इन्फ्लेशन हुआ, इसका डाटा है, हम चेक कर सकते हैं कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है। आर ऑयल प्राइजेस कंट्रीब्यूटिंग टू अ जीडीपी स्लोडाउन, सो हम ये चेक कर सकते हैं क्या जीडीपी के ऑयल प्राइजेस क्या जीडीपी के अंदर आते हैं। डिस्पोजेबल इनकम हैज डिक्लाइन बाय 50%, ये भी चेक हो सकता है। Like all these examples, when disposable income falls, the demand for own label supermarket food rises. Raising tax on beer will have a negative effect on the profits of brewers. Higher interest rates will dampen house prices. ये सब हम चेक कर सकते हैं एक्चुअल डाटा से। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जैसे अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, हायर एजुकेशन शुड बी फ्री, ये एडवाइस है, ओपिनियन है, एक जजमेंट दे रहे हैं कि यार हायर एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, कि हो जाए तो अच्छा है बच्चों के लिए, ये सब। शुड अल्टरनेटिव फ्यूल्स भी सब्सिडाइज, मतलब क्या फ्यूल्स को सब्सिडाइज होना चाहिए या अल्टरनेटिव फ्यूल्स में भी सब्सिडी आए, तो वी मस्ट ट्राई टू बूस्ट डिस्पोजेबल इनकम, मतलब हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़े। बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन शुड बी फ्री, ये भी एडवाइस है। अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर हार्मफुल देन इन्फ्लेशन। द मिनिमम वेज should be raised by 20%. Market mechanism should be allowed to work freely. ये सब में हमें एक एडवाइस दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। सो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सिंगल यूनिट को देखता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को देखता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट पे बेस्ड है, एक्चुअल डाटा के हिसाब से उसे देखा जाता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें कोई ओपिनियंस दे रहा है, वैल्यू जजमेंट्स दे रहा है, ये सब आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। सो इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।
Hello everyone, welcome to the Edumental. So let's first discuss what we learned in previous classes. In introduction, we learn about the what is the meaning of resources. So anything which meet our wants are resources. Then we learn about features of resources. There are two features. Resources are confined in nature and they have alternative use. Then we study about goods, services and commodities. Commodities are goods and services together, known as commodities. Goods are all tangible things and which satisfy people wants. Services are intangible in nature that can be measured, touched or seen. Then we learn about what is scarcity. So scarcity means less availability of resources as relation to its demand. मतलब demand ज़्यादा और supply कम है. Then in under this we learn economy, which is a system which provides living to the people or people work to earn their livelihood. Economics, it is a social science which concerned with the individual and social choice at a presence of scarcity. Economic problem is a choice problem. देन माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के ऊपर स्टडी करती है इकोनॉमी की. इसमें एग्जांपल्स आते हैं डिमांड ऑफ कंज्यूमर, सप्लाई ऑफ प्रोड्यूसर. मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंदर होता है कि वो इकोनॉमी को एज अ होल लेती है और उसके ऊपर स्टडी करती है, मतलब पूरी वर्ल्ड की या पूरी इंडिया की ऐसे इकोनॉमी लेके चलती है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जिसे हम टैली कर सकते हैं, फैक्ट्स होते हैं, एक्चुअल डाटा पे बेस होती है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो हमें एडवाइस, ओपिनियन या सजेशन के वे में देती है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वेरीफाई हो सकती है एक्चुअल डाटा से और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वेरीफाई नहीं हो सकती है. जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो सजेशन से देती है क्योंकि वो फैक्ट्स पे बेस होती है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो सजेशन देती है, ओपिनियन देती है क्योंकि उनका कोई फैक्ट बेस्ड नहीं होती है. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट types of economy, causes of economic problem and central problems. So let's start. Now let's start with types of economics. There are basically three types of economy. That is socialistic economy, capitalization economy and mixed economy. Socialistic economy is also known as centrally planned and controlled economy. Capitalistic, also called as free economy and market economy. So first we learn about socialistic economy. Now socialistic economy वो इकोनॉमी होती है जो कंट्रोल बाय गवर्नमेंट होती है. इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दिस आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. जो इसके इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं दैट आर टेकन फॉर द सोशल वेलफेयर. इनका जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है. इस इकोनॉमी के अंदर कुछ भी काम होगा वो सोशल वेलफेयर के लिए ही होगा. अंडर सोशलिस्टिक इकोनॉमी प्राइस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. जो प्राइस होते हैं किसी भी गुड के, सर्विसेज के, वो सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है. और सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है, मतलब वहाँ पे डोमिनेशन जो होती है वो पब्लिक सेक्टर की होती है, उनकी ज़्यादा सुनी जाती है. नाउ लेट्स सी अबाउट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब इसके नाम से ही लगता है कि यहाँ पे जो होती होगी वो पैसे की बात होती होगी, मनी, प्रॉफिट, इनकम, सिर्फ इसी की बात होती होगी. सो in this economy, economic activities are controlled by the market forces and private sector. मतलब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को, पब्लिक सेक्टर का कोई रोल नहीं होता है. इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. देन प्राइस डिसाइड करती है मार्केट. मार्केट मीन्स फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मार्केट के अंदर जो डिमांड होती है, सप्लाई होती है, वो फोर्सेस होती हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करती है. देन प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दैट मीन्स जो प्राइवेट सेक्टर है वो वहाँ को डोमिनेट करता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को. नाउ अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है कि बोथ गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस, मतलब दोनों मिलके वहाँ के इकोनॉमी को मैनेज करते हैं. बेसिकली आवर इकोनॉमी मीन्स इंडियन इकोनॉमी इज अ एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं. इनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. मतलब इनका दोनों के मोटिव जो होते हैं
वो यहाँ पे इकोनॉमी में यूज होते हैं. द प्राइस इज डिसाइड बाय गवर्नमेंट एंड द मार्केट. मिक्स्ड इकोनॉमी में जो प्राइस होता है वो डिसाइड गवर्नमेंट और मार्केट मिलके करते हैं, और पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ यहाँ पे दोनों साथ मिलकर डोमिनेट करते हैं. बोथ जो होते हैं दोनों साथ मिलकर मार्केट को डोमिनेट करते हैं. नाउ बेसिकली सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी: सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. सोशलिस्टिक जो होती है वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. कैपिटलिस्टिक में प्राइवेट सेक्टर और मार्केट फोर्स का कंट्रोल करता है. और मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और मार्केट फोर्स दोनों मिलके उसे कंट्रोल करते हैं. इसके अंदर सोशलिस्टिक में सोशल वेलफेयर मोटिव होता है, कैपिटलिस्टिक में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव होता है. सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जो प्राइस होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइस मार्केट डिसाइड करती है. मार्केट मीन्स फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइजेस गवर्नमेंट और मार्केट दोनों मिलकर डिसाइड करती है. सोशलिस्टिक में पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है, कैपिटलिस्टिक में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर डोमिनेट करते हैं. नाउ लेट्स फर्दर मूव टू कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. Causes of economic problem. There are 3 causes of economic problem. First one, limited resources. The resources are limited in nature because what people want all is not prepared by nature. Nature में resources limited है. तो जैसे अब हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है ही नहीं, पूरे रिसोर्सेज नहीं है ना. बाहर रिसोर्सेज है तो वो इंडिया से लेते हैं और इंडिया वाले बाहर से इम्पोर्ट करते हैं. सो रिसोर्सेज लिमिटेड है नेचर में. अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. सो ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग. मतलब ह्यूमन वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती. एक ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है कि अभी हमें ये वाला फ़ोन चाहिए था, अब दूसरा चाहिए. ऐसे ही जो, और कई बार वो ये ह्यूमन वांट्स जो होते हैं उसे दोबारा रीजनरेट हो जाती हैं कुछ टाइम बाद. अभी वो सेटिस्फाई हो गई लेकिन फिर रीजनरेट हो गई, कभी मल्टीप्लाई हो जाती है. सो कभी भी ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग. वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं. नाउ दे हैव रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज. मतलब जैसे कि हमने रिसोर्सेज की डिफाइन के टाइम पे पढ़ा था, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑल्सो. अब जैसे मिल्क को हम अलग अलग चीज़, ये सब चीज़, कर्ड, ये सब बनाने के लिए यूज़ करते थे. मतलब एक ही गुड के अलग अलग यूज़ हो रहे हैं, उस वजह से उस गुड की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है. सो इन कंक्लूजन देयर आर 3 मेन कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम: लिमिटेड रिसोर्सेज in nature, unlimited human wants which are never ending, and alternative uses. Now let's move further with the central problems. Now there are 3 central problems: what to produce and in what quantity, how to produce and for whom to produce. Now the problem of what to produce and in what quantity is relates with the production of goods and services in an economy. मतलब as the resources are scarce in nature, so every producer faces a economic problem कि what to produce. मतलब कि जैसे कि resources scarce हैं तो जो हर प्रोड्यूसर होता है उसे फेस करना पड़ता है कि उसे क्या बनाना चाहिए. क्या वो कंज्यूमर गुड्स बनाए, लाइक जो डेली यूज़ के होते हैं, वीट, राइस, ये सब, ब्रेड, ये सब प्रोड्यूस करे, या फिर वो प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करे, लाइक मशीनरी, प्लांट्स, ये सब प्रोड्यूस करे वो. सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्रोड्यूसर के माइंड में कि उसे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, वेदर कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स. और अगर किसी तरीके से वो ये डिसाइड भी कर लेता है उसे क्या डिसाइड करना है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि उसे किस क्वांटिटी के अंदर उस गुड को बनाना चाहिए. मतलब कि क्या क्वांटिटी सही होगी जो इकोनॉमी को फुलफिल करेगी, वांट्स फुलफिल करेगी इकोनॉमी के, तो ये डिसाइड करना मुश्किल है. तो दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ economy. Now second is how to produce. How to produce, the problem of how to produce relate with the technology और method of production. मतलब अब अगर उसने डिसाइड भी कर लिया तो अब फिर है कि वो प्रोडक्शन कैसे करे, उसकी क्या टेक्निक यूज़ करे, क्या मेथड यूज़ करे जो प्रोडक्शन हो वो कम कॉस्ट के अंदर हो जाए. सो देयर आर 2 टेक्निक्स, वेदर लेबर
इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव में वो लेबर ज़्यादा यूज़ करेगा, कैपिटल कम यूज़ करेगा, और कैपिटल इंटेंसिव में वो कैपिटल मतलब कि जो फंड्स हैं वो ज़्यादा यूज़ करेगा और लेबर कम यूज़ करेगा। अब कैपिटल में वो मशीनरी पे पैसा खर्च करके लेबर कम यूज़ करके ऑटोमेटिक मशीन से प्रोडक्शन करे, या वो उधर पैसे बचा के ज़्यादा लेबर हायर करे और फिर वहाँ से प्रोडक्शन करे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, मीन्स अब अगर उसने सब डिसाइड कर लिया तो अब उसके दिमाग में क्वेश्चन है प्रोड्यूसर कि अब उसे किसके लिए बनाना चाहिए, मतलब फ्यू रिच या फ्यू पुअर। एज द इन इकोनॉमी देयर इज अ अनयूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, सो सब अनइक्वल है, कोई कुछ ज़्यादा ही अमीर है या कोई बिल्कुल ही गरीब है। सो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कि क्या उसे सिलेक्ट करना चाहिए। सो एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल देयर आर 3 ways. In case of what to produce and in what quantity, there is a guiding principle is कि उसे ऐसा प्रोडक्शन करना चाहिए जो उसे कंज्यूमर्स को या और उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, मतलब वो वाले गुड्स वो प्रोड्यूस करे जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहे हों, वेदर इट्स कंज्यूमर गुड्स और वेदर इट्स प्रोड्यूसर गुड्स, और उसी क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस करे। इन केस ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस देयर इज अ guiding principle that he used any technique in which output is produced at a minimum cost using least possible scarce resources, means ऐसे कोई टेक्निक यूज करे जिससे आउटपुट जो हो वो मिनिमम कॉस्ट लगे, कम खर्च लगे, और जो रिसोर्सेज है उनका कोई यूटिलाइजेशन बिल्कुल सही से हो, अनयूटिलाइज नहीं हो या उनकी वेस्टेज ना हो, इस तरीके से वो प्रोड्यूस करे। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस the guiding principle is that he produce any of the good which fulfills the demand and need of both rich and poor, means he need to produce those good जो rich और poor दोनों की डिमांड कंप्लीट करे, कोई भी बचे ना। सो बेसिकली देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हमने तीनों रिवाइज पढ़ ली हैं एक बार। सो लेट्स रिवाइज देम। फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन वन क्वांटिटी, मतलब क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, वेदर कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर गुड, और अगर डिसाइड हो जाए तो फिर उसे किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए। सो लेट्स एक्सप्लेन। एज द रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर, सो एवरी प्रोड्यूसर फेस द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस which is related with the production of goods and services in an economy. The producer is in confusion or dilemma that whether to produce consumer goods like wheat, rice, bread, or producer goods like machinery, plants, or and if somehow he decides, then again he will go in dilemma that what quantity should be produced. So इसका solution है कि वो ऐसा product that he produce any of the good which give maximum aggregate satisfaction to him as well as to the consumers. Now second problem is how to produce, which is the problem of how to produce is related with the techniques or method of production in an economy. There are 2 types of intensive techniques, that is labor intensive or capital intensive. The producers are in dilemma whether to produce from labor intensive technique in which more labor is used than the capital, or to produce from capital intensive technique in which more capital used than the labor. And solution for this problem is that he use any technique in which output is produced at the minimum cost using least possible scarce resources. Now the third problem is for whom to produce. Now as for whom to produce is related with the distribution of income and wealth in an economy. The producers are in dilemma whether to produce for few rich like luxurious goods or for few poor like necessary goods. So the guiding principle for whom to produce is produce any of the good which will fulfill the demand need of the both rich and poor. Now there are 2 aspects under the problem for whom to produce. First one, functional distribution. Functional distribution, this implies how the various social groups, मतलब जो बड़े groups हैं, landowners, capitalists, workers and entrepreneurs receive their relative share of income when they produce goods and services. This is called the problem of functional distribution. इसका मतलब है कि जो जैसे जैसे काम कर रहा है,
जो भी वो काम करे, चाहे वो वर्कर हो, कैपिटलिस्टिक हो, सो उन्हें उस काम का शेयर ऑफ इनकम वो अपनी कमा रहे हैं, उनके पास वो रिसीव हो रही है. सेकेंड एस्पेक्ट है personal distribution. The problem of personal distribution is also concerned with the problem of inequality in the distribution of income. That is, how the income should be distributed among individuals and households in the society. So this is the next problem कि जो income है वो inequal है, तो वो कैसे distribute हो individuals में, households में, in a society. So in today's class we learn about the type of economies. There are three types: socialistic economy, capitalistic economy, and mixed economy. Socialistic economy was controlled by government. Its motive is social welfare, price determined by government, and public sector dominates. In capitalistic economy, they are controlled by private sector. Their motive is profit maximization, price is decided by market forces, and their private sector dominates. In mixed economy, both government and market forces together control the economy. This motive of a mixed economy is social welfare and profit maximization. Price decided mutually by government and market, and public and private sector both dominates the mixed economy. Then there are causes of economic problem. There are three causes of economic problem: limited resources, unlimited human wants, and alternative uses. Then we talk about the central problems. Basically, there are three central problems: what to produce and in what quantity, how to produce, and for whom to produce. We discussed that in what to produce, there is a dilemma whether to produce consumer goods or producer goods, and in what quantity, in how to produce, what technique or method of production is used, and in for whom to produce, few rich or for few poor. Now let's discuss about this question. Positive statements are the statements of truth, whether it's true or false. What you guys think? इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमेशा सच होती हैं. What you guys think about this? So let's say this statement is false. Why? Because ज़रूरी नहीं कि हर लिखी हुई पॉजिटिव स्टेटमेंट जो हो वो सच ही हो. ये तभी चेक होगा जब हम उसे चेक कर लेंगे कि वो सच है या झूठ है. सी, positive statements are not the statement of truth. Positive statements may be true or false. One can verify these statements as true or false. Let's take example. See, are oil prices contributing to a GDP slowdown? अब ये सच है कि झूठ है ये हमें नहीं पता. Whether it's true or false, we don't know. हम इसे जो डाटा दे रखा है उससे चेक कर सकते हैं. So मतलब इसका मतलब कि इस टाइप की स्टेटमेंट्स, मतलब ज़रूरी नहीं वो ट्रूथ ही हो, वो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. So that's enough for today. We discuss other topics in next class. Thank you. Hello everyone, welcome to the EduMental. In previous sessions, we already studied about these topics. Now today class we start with what is opportunity cost. Opportunity cost is the opportunity lost, and its value lies in the next best alternative foregone. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जो अपॉर्चुनिटी हम लॉस्ट कर चुके हैं, उस अपॉर्चुनिटी को लॉस्ट करने की जो कॉस्ट होगी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी. इट्स वैल्यू लाइज इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, मतलब जो हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव चला गया वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू होगी. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Doctor has a three alternatives: to work in a government hospital, in private hospital, or open his own clinic. So suppose he can work in a government hospital with a salary of 2 lakh, in private hospital with a salary of 3 lakh, and he can open his own clinic at 4 lakh per month. So the opportunity cost for opening his own clinic is going to the working at a private hospital. अगर वो अपना खुद का क्लिनिक खोलता है तो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल की सैलरी जो होगी वो
उसे छोड़नी पड़ेगी, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस केस में 3 लाख रुपीज़ हो जाएगी। एंड सिमिलरली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल इज 2 लाख विच इज़ वर्क सैलरी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही रिसीव। तो ये इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है जो इसने छोड़ा है, इसकी वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इट इज़ इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन केस अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल चूज़ करता है वर्क करने का। एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ़ ही चूज़ टू वर्क एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ 0, क्योंकि इससे पहले उसके पास कोई और अल्टरनेटिव ही नहीं था। ये इसी स्टेप्स इसके पास इसी प्रोसीजर में अल्टरनेटिव्स थे। तो अगर वो ओन क्लिनिक चूज़ करता है 4 लाख पे, तो उसे 3 लाख रुपीज़ छोड़ने पड़ेंगे, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। ऐसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फ़ीस छोड़नी पड़ेगी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 लाख रुपीज़ कहलाएगी। और सेम वे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर वो छोड़ता है तो उसके ऊपर कुछ नहीं है, सो दैट इज 0 इज द आंसर। सपोज लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज you have 30,000 rupees and you want to purchase one laptop. You have 30,000 rupees and you want to purchase laptop and one LED. With 30,000 rupees in cash, you can either buy laptop or LED TV. If you have dedicated to purchase laptop, then your opportunity cost of buying the chance of buying LED TV, and if you buy LED, then opportunity cost is chance of buying laptop, which is the forgot satisfaction. Means अगर आप लैपटॉप खरीदते हो तो आप अपनी LED TV की सेटिस्फेक्शन को लूज कर रहे हो, तो डेट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू बाय द लैपटॉप। एंड इन सिमिलर वे अगर आप LED लेते हो तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी लैपटॉप। सो सिंपली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, मतलब अगर जो उससे ऊपर आपको बेस्ट एक अल्टरनेटिव था आपने उसे छोड़ा है तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज MOC, and marginal rate of transformation, MRT. Now MOC is defined as the amount of one good that is to be sacrificed per unit increase in the production of other good, or it is the ratio of number of units of a good sacrificed to the additional unit of another good. Means एक गुड को परचेज कर, एग्जाम्पल जैसे गुड X को परचेज करने के लिए गुड Y की कितनी आपने सेक्रीफाइस की है यूनिट्स, वो चीज़ पर यूनिट कितनी सेक्रीफाइस की है, तो वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो MOC इक्वल्स टू डेल्टा लॉस, तो MOC इक्वल्स टू डेल्टा लॉस डिवाइडेड बाय डेल्टा गेन। मीन्स जितना आपने लॉस करा उसके ऊपर कितना गेन करा, वो अमाउंट MOC कहलाता है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ MOCs। MOC इंक्रीजिंग, सो ये गुड X के वेरिएबल्स हैं एंड गुड Y, सो डेल्टा X इक्वल्स टू, नाउ 0 यूनिट पे नो डेल्टा X नो डेल्टा Y, सो नो MOC। अब 1 यूनिट के लिए हम 1 यूनिट इंक्रीज हुई यहाँ पे, उसके लिए कितना सेक्रीफाइस हुआ ये देखना है। सो लेट्स से यहाँ पे 1 यूनिट इंक्रीज हुई और यहाँ 2 यूनिट्स फॉल हुई, यहाँ अगेन 1 यूनिट इंक्रीज हुई, यहाँ 4 यूनिट्स फॉल हुई, यहाँ फिर 1 यूनिट एडिशनल यूनिट इंक्रीज करने पे उसे 6 का लॉस हुआ। सो MOC इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय गेन, so it is 2:1, 4:1 and 6:1. This is what MOC increasing means। हम कितना एक यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं यूनिट, जिसकी वजह से हमें दूसरा गुड सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो MOC की जो रेशियो होती है वो डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, मीन्स डेल्टा Y इक्वल्स टू डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा X। सो वो हमारी MOC निकल कर आ जाएगी। MOC एंड इट्स 2, 4,
6 और जो रेशो है वो 2:1, 4:1 एंड 6:2. The ratio is MRT and the loss is MOC. And you can see there is MOC increase कर रहा है 2, 4, 6. 2 यूनिट से MOC increase कर रहा है. So let's see it graphically. अगर हम MOC के पॉइंट्स करते हैं मार्क, so it's 1, 2:1, then 1:12, 0:12 यहाँ पे, then 1:1, 10, 2, 6 and 3, 0. So it make a shape something like this. It's a concave shape. So MOC increasing is concave in shape. Let's revise MOC increasing. See, यहाँ पे गुड जो है वो एक गुड इंक्रीज होने पे गुड y की 2 वैल्यूज फॉल करी है. तो डेल्टा x1 कितने यूनिट इंक्रीज हुआ और कितने यूनिट से फॉल हुआ. देन अगेन 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट 4 यूनिट से फॉल हुआ. नेक्स्ट एडिशनल यूनिट सेक्रीफाइस हमें नेक्स्ट 6 यूनिट्स करनी पड़ी. तो MOC इज डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन. 2 का लॉस हुआ तब हमें 1 का गेन हुआ. सो MRT ऐसे ही 4 का लॉस हुआ तो हमें 1 का गेन हुआ. 6 के लॉस होने पे 1 का गेन हुआ. सो 2:1 लॉस अपॉन गेन, लॉस अपॉन गेन. तो ये हमारी MRT हो गई और 2, 4, 6 इज MOC. नाउ अगर हम इन x और y को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो वो एक कॉन्केव शेप देती है. सो MOC पॉजिटिव इंक्रीजिंग जब होगा तब ग्राफ की शेप कॉन्केव होगी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद MOC फॉलोइंग. इन दिस केस अगेन 0 पे डेल्टा x नील नील. इसका मतलब ये हम डिफाइन नहीं कर सकते. अब यहाँ पे फिर 1 एडिशनल यूनिट इंक्रीज हुई हर बार. उसके साथ अब यहाँ पे फॉल होनी शुरू हुई. Now MRT is delta y upon delta x. So it's 5:1, then 4:1, this is MRT delta y upon delta x. 5:1, 4:1, 3:1, 2:1 and 1:1. So MOC हो गया हमारा 5, 4, 3, 2 and 1. See good y. See simply delta y is the good y is the accumulation of delta y. जब हम इनका सम करेंगे तो 15 आएगा. -5, 10, -4, -4, 6, -3, 3 and -2, 1, 1, 0. सो गुड वाई जो होती है वो ये सब गुड डेल्टा वाई डेल्टा एक्स की क्यूमुलेशन ही गुड एक्स हम उसी से माइनस करके क्योंकि निकालते हैं. तो अगर हम MOC डिक्रीजिंग बनाए तो हम इसे डिक्रीजिंग शो करके गुड बाय गुड एक्स की अगर एग्जाम में बनाने को आ जाए तो इस हिसाब से ड्रॉ होगा. नाउ लेट्स टेक अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. Here is good x and good y. अब जब हम इन good x और good y के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी, which is convex. So MOC increase falling is convex in shape. MOC increasing is concave and MOC decreasing is convex.
See, MOC increasing is concave in shape. ये जो shape है, that shape it's concave, और convex जो MOC falling है वो convex होता है. Now let's talk about MOC constant. MOC constant, good x में variables and good y variables. अब delta x, it's again blank. 0 पे हमेशा MRT MOC nil होता है. उसके बाद यहाँ अगेन 1 यूनिट ऐड हो रही है एंड यहाँ पे फॉल हो गया, मतलब सेक्रीफाइस हो रहा है. सो इट्स बाय 2 यूनिट्स. सो MRT हुआ 2:1, इसका भी 2:1. 2:1 मीन्स जितना लॉस हो रहा है जितना लॉस हो रहा है उसके ऊपर कितना गेन हो रहा है हमें. तो MOC इज 2 इन एवरी केस, क्योंकि ये कांस्टेंट है. यहाँ पे MOC कांस्टेंट में सेम है. सो MOC कांस्टेंट में जैसे जैसे हमने यहाँ पे एक एक गुड एक्स की यूनिट एडिशनल यूनिट यूज़ कंज्यूम करना स्टार्ट की, वैसे वैसे गुड वाई की सेक्रीफाइस करना स्टार्ट हुई. सो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो सेम यूनिट से हो रहा है. सो दैट वाई 2:1. तो MOC आ गया हमारा कांस्टेंट. नाउ लेट्स सी ग्राफिकली. अब अगर हम गुड एक्स और गुड वाई के पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो हमारी कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी. सो MOC कांस्टेंट में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि जो हमारा इंक्रीज और सेक्रीफाइस हो रहा है वो सेम अमाउंट से हो रहा है. तो यहाँ पर जो लाइन आती है ग्राफ स्ट्रेट, जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट होगा MOC कांस्टेंट के. इस चैप्टर का बेसिकली मेन टॉपिक यही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो अमाउंट होता है जब हम एक गुड सेक्रीफाइस कर रहे हैं पर यूनिट अलग दूसरे गुड को प्रोडक्शन के, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, and ratio of number of units of a good sacrifice to the additional unit of another. Class we will do PPC, that is production possibility curve, and more questions on MOC. Production possibility curve PPC is also known as production possibility frontier, that is PPF. PPC shows various possible combinations of two goods that can be produced with the available resources and the given technology in an economy. PPC एक वो कर्व शो करता है जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस टू गुड्स के, लाइक गुड एक्स एंड गुड वाई, अवेलेबल जो प्रोड्यूस अवेलेबल रिसोर्सेज और जो गिवन टेक्नोलॉजी है इकोनॉमी में उनसे प्रोड्यूस होते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज transformation curve because when we move down we transform good x into good y, and when we move up we transform good x good y into good x. Therefore PPC known as transformation curve. Now characteristics of PPC. There are two characteristics of PPC. First, downward sloping from left to right. Second, concave to the origin. Now when the PPC curve slopes downwards left to right, which implies that in order to produce more of one good, some unit of other good must be sacrificed. It shows negative relationship between the two. It's in this way, जब हम good x की ज़्यादा यूनिट लेते हैं तो हमें good y sacrifice करना पड़ता है. So good x पे हम इधर मूव करेंगे. सो इन दिस वे यहाँ गुड वाई की यूनिट्स कम होंगी, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. नाउ सेकेंड characteristic is concave to the origin. The PPC is concave because of increasing MOC. It implies that for every additional unit of one good produced, more and more output of other good has to be sacrificed. Now this is the PPC schedule. There are A to F are possible combinations good X and good Y. जब हम इन कॉम्बिनेशंस को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो
जो फिगर बनेगी वो PPC कहलाएगी. It shows like this, that is concave to the origin and it's downward sloping. Now we study of resources. मतलब use perfect हो रहा है. अगर होगा इसका मतलब पॉइंट का मतलब है कि जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्टली हो रहे हैं, उसमें कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही है. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. When the point is below the PPC curve, it is said to be underutilization. It indicates the problem of unemployment and inefficiency in the economy. जब मतलब कि रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज नहीं हो पा रहे हैं जिसकी वजह से वो इस PPC कर्व के अंदर लाई करते हैं. ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Any point above the PPC curve indicates the problem of scarcity. This point shows the problem of scarcity. ये पॉइंट जो है वो अटेनेबल है, मतलब यहाँ से बाहर जा सकता है, ये यहाँ से ये भी अटेन हो सकता है यहाँ पे आकर, लेकिन यहाँ से हम वापस नहीं कर सकते ओवरलैप. दैट इज अनअटेनेबल. सो व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द PPC curve, it means there is a efficient utilization of resources. When the point below the PPC curve indicates the problem of unemployment and underutilization of resources, and any point above the PPC curve indicates the problem of scarcity or overutilization of resources which is not attainable. Now this is the last topic of this chapter, changes in PPC. There is two ways to first shift in PPC and second rotation of P types, rightward shift and leftward shift. When PPC curve move from A to B, that is outward or rightward, it is called rightward shift, and when PPC curve move from A to C, it is called leftward shift. PPC will shift when there is change in resources with respect to both the goods, good X as well as good Y, and rotation will take place when there is change in technology with respect to only one good. Wars, etc. The economy will now produce less of both goods. See, rightward shift तब होती है जब हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज बढ़ते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई तो वो PPC राइटवर्ड शिफ्ट करेगा. बट लेफ्ट अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुई तो वो कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट. इकोनॉमी में रिसोर्सेज कम हुए तो कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, और वहीं कोई माइन मिल गई और हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा. PPC रोटेशन ऑफ PPC विल रोटेट व्हेन देयर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू वन गुड. रोटेशन ऑफ PPC में 4 केसेस आते हैं. These are the 4 cases of rotation of PPC. When good X increases and good Y remains constant. इस पॉइंट पे good Y constant है और वो बाहर की तरफ, क्योंकि गुड्स रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं तो वो राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है. रोटेशन जो हो रही है वो बाहर की साइड हो रही है और यहाँ पे कांस्टेंट होते होते गुड X की इंक्रीज हो रहे हैं. सिमिलरली इन सेकेंड केस यहाँ पे गुड X कांस्टेंट है, गुड X यहाँ कांस्टेंट है और गुड Y इंक्रीज कर रहा है इस वे में. थर्ड केस जहाँ पे गुड X फॉल कर रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा और गुड Y कांस्टेंट है तो इस पॉइंट से कांस्टेंट होते होते वो इस तरीके से बढ़ रहा है, अंदर की तरफ लेफ्टवर्ड जा रहा है रिसोर्सेज गुड X की प्रोडक्शन कम हो रही है. यहाँ पे फोर्थ केस है जहाँ पे गुड X कांस्टेंट है और Y की प्रोडक्शन कम हो रही है. सो इन दिस वे ये नीचे आ रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट के साथ रोटेशन हो रही है. रोटेशन में एक पॉइंट हमेशा कांस्टेंट रहता है. सिर्फ रोटेशन का इफेक्ट एक गुड के ऊपर होता है, दोनों गुड्स पे नहीं. नाउ द PPC शिफ्ट upward or rightward if improvement in technology take place of both the goods at some time. Now, there are some causes of underutilization of resources. First one, problem of mass unemployment. Second, less utilization of productive capacity, means resources हैं but उन्हें use नहीं कर रहे हैं. Third, non-utilization of some part
कल्टिवेटेड लैंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी मीन्स हमारे पास लैंड है लेकिन इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूज में ही नहीं आ रहे हैं. नाउ कॉजेज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स. Second, increase in skilled labor. Third, discovering of new reserves and other mineral reserves. So, this is the end of Unit 1 chapter Introduction.